हे हेलो माय डियर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो हम कर रहे थे इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज, जिसके अंदर हम लोग 4 कर चुके हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ मैं भी होल्ड पे डाल रही हूँ बिकॉज दिस वर रिलेटेड टू बैंक ऑडिट। तो अभी उस कॉन्सेप्ट की रिवीजन रिक्वायर्ड है आपकी, इसीलिए अगर मैं वन शॉट रिवीजन लेके आती हूँ तो उसके बाद हम लोग इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो नंबर 5 और 6 करेंगे। उससे पहले 7 पे आ जाइए। तो 7 आपको पता है, हम पहले कोई भी एमसीक्यू हो उसको स्टार्ट करने से पहले उसके क्वेश्चंस रीड करते हैं। तो चलिए इसके भी क्वेश्चन रीड करते हैं। पहला, considering the auditor's point of view regarding engagement quality control review, identify the most appropriate statement from below। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट बतानी है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा ये पढ़ने की रिक्वायरमेंट आएगी। क्या है ये? CA Krishna is the statutory auditor of a listed company engaged in providing services relating to manufacturing sector. He is practicing sole proprietorship capacity. इसकी audit of above said listed company, अच्छा ये तो listed company है, और it was required for him to produce audit working papers. Of course it is required। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि किसी लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कर रहा है कौन? सीए कृष्णा इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। चलिए अब अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है। EQCR is mandatory in such type of engagement. It was not proper for auditor to bypass such review. He has violated mandatory requirement of SA 220। तो देखिए इस केस में of course EQCR is required, engagement quality control review is required। तो अगर ऐसा फॉलो नहीं किया है तो इसने वायलेट किया है। दूसरा कहता है ऑप्शनल नहीं, इस एंगेजमेंट में ऑप्शनल नहीं है। तीसरा कहता है नो कंटेंशियस मैटर अरोज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट। क्वेश्चन ऑफ नॉट फॉलोइंग SA 220 डज नॉट अराइज। सभी तरह के स्टैंडर्ड्स इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, चाहे ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो या नहीं हो। लास्ट बोलता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज डिपेंडेंट अपॉन बेंचमार्क्स established under SQC1 if those benchmarks are satisfied such a review is necessary and there is no such kind of criteria, so option A will be the answer। Okay, next second one, it has been conducted by the or contended by the auditor that audit was properly planned। auditor ने सोचा है कि audit was properly planned। he has further stated that it was practically not feasible for firm of small size to prepare a detailed audit plan। तो ऐसा कोई भी एक्सक्यूज किसी भी ऑडिटर के लिए अलाउड नहीं है। आपको प्लान जो है वो तो बनाना ही होगा, चाहे आप स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है या लार्ज साइज है। चलिए देखते हैं इसके options। First is audit was in fact planned and evidenced by auditor submission। although auditor has no record of audit plan, it does not affect compliance with SA 220। ये सेकंड वाला तो बिल्कुल ही गलत है। SA 220 कहता है कि आपको सब रिकॉर्ड्स रखने, अगर नहीं रखे तो इसकी कंप्लायंस तो होती ही नहीं है। थर्ड वाला कहता है since auditor has no record of audit plan, it goes on to show non compliance with SA 220। जी ये कुछ सही कह रहा है। लास्ट कहता है audit was in fact planned as evidenced by the auditor submission, however there is an exemption for small CA firms। ऐसी कोई exemption SA 220 ने तो दी नहीं है। so option C कि ऐसा अगर प्लान नहीं है इसका मतलब आपने नॉन कंप्लायंस किया है SA 220 का, that will be the correct option। Now next, considering auditor reply regarding errors in data feeding entry by junior staff। auditor के कोई junior staff ने data feeding में entry में गलती की है, error की है। तो देखिए क्या है, such are examples of clerical error encountered during the preparation of report। there is no question। देखिए किसी भी तरह की error और fraud audit में बर्दाश्त ही नहीं है। तो अगर error हुई है तो नॉन कंप्लायंस कह रहा है कि नॉन कंप्लायंस का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, यानी इसके हिसाब से सब ठीक हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन इज clearly wrong, it should be eliminated at first। next, such are examples of clerical error encountered during the preparation of report। there is no effect on auditor's opinion and consequently question of non compliance। ऐसा जरूरी नहीं कि ऑडिटर की ओपिनियन में फर्क ना पड़े तो नॉन कंप्लायंस नहीं हुआ ऐसे 220 का, ये भी गलत है। तीसरा, such are example of serious lapses on the part of auditor showing non compliance with SA 220। और लास्ट वाला कहता है not related to compliance with SA 220। तो देखिए ये बिल्कुल रिलेटेड है SA 220 से, और ये सीरियस लैप्स हुआ है ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर बिकॉज इट इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ SA 220। ठीक है, नेक्स्ट, on your overall reading of the case study which of the following statement appear to be true। हालांकि इसने कह दिया कि पूरी तरीके से रीड कीजिए, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शायद बिना मेरे को पढ़े समझ में आ जाए। The firm has an effective system of quality control described in SQC1। audit engagement has also been performed in accordance with SA 220। ये कह रहा है दोनों चीजें सही है, पर एक बात बताओ, मैंने केस स्टडी नहीं पढ़ा, मुझे पता है, पर मैंने पहले के 3 MCQ तो पढ़े, उसमें साफ ही पता लग रहा था SA 220 का वायलेशन हुआ है 2 में। तो
इसका मतलब ये एप्लीकेबल है और फॉलो नहीं हुआ, तो फर्स्ट वाला तो गलत है। दूसरा, फर्म डज नॉट हैव इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिस्क्राइब्ड इन एसक्यूसी 1, एंगेजमेंट इज आल्सो नॉट बीन परफॉर्म्ड एज पर एसए 220, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस एमसीक्यूज देखे उसमें कुछ ना कुछ ऐसा बताया था कि फर्म के जूनियर अकाउंटेंट वाले की जो गलती थी, एरर थी, वो इग्नोर हुई। तो इसका मतलब एक जगह था कि वो प्लान ही रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो ऐसे 220 और एसक्यूसी 1 दोनों ही नहीं फॉलो हो रहे। तो इसके लिए देखो क्या हुआ, केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, बस पीछे वाले एमसीक्यू से समझ आ गया। Now question number 5, the auditor has reasoned that risk of material misstatement has been assessed to be low based upon his understanding of the company and is a matter of professional judgment. तो ऑडिटर ने ऐसा बोला कि मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है कि मेरे हिसाब से इस कंपनी में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लॉ है। ठीक है, देखिए असेसमेंट, ऑप्शन नंबर 1, assessing risk of material misstatement is a matter of a professional judgment. It cannot be demanded from him how the judgment was arrived at. कुछ हो सकता है। सेकंड, although auditor has not submitted report of how risk of material misstatement was arrived at, it does not affect compliance. एक तो आपने सबमिट नहीं किया, ऊपर से कह रहे हैं कि compliance भी अफेक्ट नहीं होगा, सेकंड नंबर तो बिल्कुल ही बाहर हो जाता है। थर्ड, auditor has no record of how risk of material misstatement was arrived. अच्छा, ऑडिटर के पास में रिकॉर्ड ही नहीं है कि उसने कैसे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे अराइव किया, उसका मतलब ये कि उसने नॉन कंप्लायंस किया है ऐसे 220 का। तो ये वाला ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट लगता है। लास्ट कहता है सच ए क्वेरी इटसेल्फ इज आउटसाइड द मैंडेट ऑफ अथॉरिटी, नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो गया है ICS नंबर 7। नाउ विद दिस we have completed our 5 case based scenarios MCQs, and to get continue with me, stay tuned. That's it for this video. See you tomorrow.